नेटफ्लिक्स पर जल्द आने वाली है एक नई मूवी जिसका नाम है अरानियक, जिसमें नजर आएंगी रवीना टंडन एक अलग ही अंदाज में। लोनावला में हुई इस मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें शामिल थे फिल्म से जुड़े सितारे जैसे कि रवीना टंडन, आशुतोष राणा। वैसे इस मूवी में नजर आएंगी ना आना इस देश लाडो फेम मेघना मलिक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो पहला फिल्म में डेब्यू था पत्थर के फूल, दैट वाज 1991, दैट वाज विद सिप्पी फिल्म्स। अब मेरा OTT डेब्यू जो है लाइफ कम्स अ फुल सर्कल 2021 is again with Sippy Films. Wow. So this is again for me in my life another landmark, which 1991 Patthar Ke Phool gave me 30 years of me still being in front of y'all and y'all tolerating me. So I'm hoping that 2021 again will be maybe another 30 years of y'all still tolerating me. And the joke is this: in those 30 years, we both I've aged the 60 years, and she looks the same as 1991. किसी ने मुझे कहा था कि आप रात को क्या फ्रिज में सोती हैं? Honestly, like I said when I heard Kasturi Dogra's character, I think it is a story and the entire persona and the dilemma that she goes through at every point in her life, because she's this fiercely independent, super talented, brainy, brawny cop, and is waiting for that opportunity to excel in her life, where she's surrounded by all her male counterparts. And yet the full prioritizing of her life, her family life, her husband, her children, her in-laws, and the very fact that she wants to achieve in her career, which she passionately loves, being a cop. She's always wanted to be a cop. And the way we women juggle our careers, our lives, our emotional support that we get from home or we don't get from home, our priorities that are our children, our in-laws, our family, is what completely attracted me to her character, because I think a lot of women can identify with that, and especially all our women in uniform. It is so important to get that kind of emotional support backing, because the job that they do, being a cop, is not only something that is physically taxing, it is mentally taxing. There's so much pressure on them to try and excel, to try and, get across, get some clues, solve a case. The media is after them, people are after them. And this is what her life is all about. So it's something that I might not identify, because I might be one of those few lucky ones who's had constant emotional support from her family, whether it was my parents, my husband, my children, to go out there and achieve and do my best in my chosen career. But there are so many women out there, so many Kasturi Dogras, who are not lucky enough to get that kind of emotional support. And that is what makes this character so beautifully strong for me against all odds. जैसे ये किरदार भी जो जगदम्बा का किरदार है, जैसे जहाँ कस्तूरी की अपनी एक फ़ाइट है, उसकी अपनी लड़ाई है, ऐसे ही जगदम्बा भी जो है उसकी वो अपनी ही ज़िंदगी के द्वंद्व में फंसी हुई है। वो भी प्रोफेशनल राइवलरीज़ जो हैं उनसे जूझ रही है। वो एक अकेली माँ है जो बच्चे को पाल रही है, और साथ में जो एक मैनिपुलेटिव वर्ल्ड है वो उसमें अपना डट कर उसका सामना कर रही है, एम्बिशन भी है। सो ये कहानियाँ अब जब सामने आ रही हैं OTT पे, ज़्यादा मौका मिल रहा है हमें, एंड इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, लेयर्ड कह लीजिए, टेढ़े मेढ़े कह लीजिए, ट्विस्टेड कह लीजिए, वो खेलने का जब मौका मिलता है तो खुद में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये कर पाए। और ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात हो जाती है जब इस तरह से कई बार बहुत सारी महिलाएं आपके सामने आती हैं, आपसे कहती हैं कि इतना खूबसूरती से हमने रिलेट किया, बड़ी आपसे ताकत मिली उस किरदार से। तो ऐसे मौके हमें और मिलने लगे हैं, ये खुशकिस्मती है। और नेटफ्लिक्स ख़ास तौर से लाइक कस्तूरी, एक सेंट्रल पावरफुल वुमन, इतना इम्पोर्टेंट सिंबल जो दर्शकों तक पहुंचने वाला है, तो बहुत अच्छी
बात है, ऐसी कहानियाँ और चारू जैसे कहा कि महिलाओं की कहानियों को वो बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं, उन किरदारों की जो गहराई है, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं परिवार के साथ, प्रोफेशनली, ऑफिसेज में, वो बहुत खूबसूरती से उजागर हुआ है इसमें. For you. सेम. उपमा, दोपहर में तो आपको बोल दिया मैंने सब. आई थिंक दैट हैज बीन द रूल since ages. So it's not something that is now new to behold. I think it's always been, content has always been king, and that has been proved again and again. It is what I feel. It's not the star or the star face or the star value. It's the characters and the content that makes any show very, very powerful and very gripping to watch. So I am Kasturi Dogra right now, but I could have been in not Raveena Tandon playing this. It could have been anyone else playing that. Kasturi Dogra in itself is so strong that she would reach out to you anyhow, the way it's been shown and the way you just saw. So for me, it's not a thing that, oh, you know, it's mediocre or it's average and let's pass it. I think what is strong or what needs to be today is content and how everyone makes it. I have to say, इनके नाम पे मत जाना, but actually question mark है इनके नाम में भी. विनय, why cool? उस नाम पे मत जाइएगा, कूल तो हटा दीजिएगा. टाइगर मॉम वॉज द करेक्ट नेम, वी कैन गिव ऑल ऑफ हिम. बट जैसे कि आशुतोष जी ने अभी कहा कि इन्होंने आशुतोष राणा को मिटा के, दैट इज़ वॉट आई मेंट विथ माई प्रीवियस आंसर एक्चुअली, बट आई शुड हैव गिवन विनय क्रेडिट फॉर दैट. कि रवीना टंडन नहीं, कोई और भी हो सकती थी कस्तूरी डोगरा, लेकिन वो कस्तूरी डोगरा इतनी पावरफुल है जिन्होंने, जो मैं सिर्फ विनय जी नहीं, बट आई विल से चारू ऑल्सो, रोहन ऑल्सो, एंड एवरी वंस कॉन्ट्रीब्यूशन to make Kasturi Dogra what Kasturi Dogra is and what you will see on the 10th of December. चारू, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसको ये मत समझिएगा, मैं पहली बार इनसे मिला हूँ, लेकिन भैया तुम आपके लिखे हुए एक एक शब्द को बड़ी शिद्दत के साथ बोला है, कसम से तुम. सीरियसली हम ही वर नॉट अलाउड टू. मैं आज मिला इनसे अभी, और जब मैं मिला और एक शिष्टाचारवश हमने नमस्कार किया तो सबको लगा कि जैसे मैं और चारू बड़े पुराने दोस्त हैं. अब इसमें ये हमारी भी अपनी फितरत है कि मैं अपरिचय में भी सुपरिचय की मुस्कुराहट देता हूँ. और फिर मैंने पूछा मेघना से और जाकिर भाई से, मैंने कहा ये कौन है? तो बोले तुम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानता. तो बोले अपराध है ये. तो मैंने कहा भाई मुझे बताइए तो कितना बड़ा अपराध है? बोले ये तो चारू हैं, यही तो हैं जिन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है. और मैंने तुरंत इनसे क्षमा मांगी और मैंने कहा भैया अगली बार जब कलम चलाओ तो कृपा करके इस नाचीज़ को याद रखना, और कसम है कि तुम्हारे एक एक शब्द को मैं उतना ही सम्मान दूंगा जितना तुम अपना लिखते समय देते हो. हम सब चारू जी. बहुत मतलब बहुत कमाल का है. और आप जब देखेंगे आरण्यक की पूरी कहानी, क्योंकि अरण्य हमेशा से ही रहस्यों का स्थान रहा है, और अरण्य में रहने वाले आरण्यक उन रहस्यों के सौदागर होते हैं जो उन रहस्यों की गांठें खोलने का काम करते हैं. तो ये रहस्य और रहस्य के जो सौदागर हैं, उनकी जो गांठें हैं, उसको खोलने की जो दास्तान है वो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने फिल्माई है. और थ्रिलर की सबसे अच्छी खूबी जो टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं कहता हूँ, आपने सवाल पूछा था चारू से, और चारू चूँकि शर्मीले हैं, वो लिखने में विश्वास करते हैं, कहने में नहीं करते. हम लोग कहने में विश्वास करते हैं और करने में करते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ. थ्रिलर में क्या होता है कि जब भी थ्रिलर बनाते हैं तो थ्रिलिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो राइटर का होता है, डायरेक्टर का होता है और एडिटर का होता है. लेकिन जैसे ही थ्रिलर सुनते हैं तो हम एक्टर्स जल्दी में रहने लगते हैं, और हम इतने भयंकर तेजी के साथ, क्योंकि हम थ्रिल क्रिएट करना चाहते हैं. और वहाँ पे एक समझदार राइटर खड़ा था और वहाँ पे एक समझदार निर्देशक खड़ा था. उसने कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं, आप इत्मीनान से रहिए ना, भागने का काम हमारा है, थ्रिल पैदा करने का काम हमारा है, सस्पेंस पैदा करने का काम हमारा है. आपका तो काम यह है कि आप इत्मीनान से उस जगह पे मौजूद रहें. और मैंने इन्हीं के उसमें सीखी ये बात जो मैं आज बता रहा हूँ
कि एक्टर हमेशा कोशिश करता है कि उसके शब्द सुनाई दें और सन्नाटे यानी पॉजेस दिखाई दें, लेकिन करते करते मुझे लगा कि आशुतोष, एक्टर के सन्नाटे सुनाई पड़ने चाहिए और शब्द दिखाई पड़ने चाहिए, तब आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कमाल की निकल के आती है। और ये हुआ कि सन्नाटे आपको दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर आरण्यक में, और शब्द जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो इनके शब्द दिखते हैं और सन्नाटे सुने जाते हैं। तो ये अद्भुत हमारा सफर रहा है। और एक और चीज़ मैं ये लाइट और उसमें कह दूं कि ये आपने इतना अद्भुत काम कर दिया है, सवाल हमेशा अंधेरे में से आते हैं और जवाब हमेशा प्रकाश की तरफ से जाते क्या हैं। बात है। तो ये बड़ी विचित्र जीवन की स्थिति आपने पैदा की है, और हमें सवाल तो सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन सवालदार की चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अन्यथा जब चेहरे दिखाई पड़ते हैं तो सवालों की तासीर सवालों के मुताबिक नहीं, चेहरों के मुताबिक होने लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सवालों को ईमानदारी से हमने सुना और उसके ईमानदारी से हमने जवाब देने का प्रयास किया। आपने जो सन्नाटों की बात की, तो 10 दिसंबर के लिए हम तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये परिवार इकट्ठा हो गया। मैं गुजारिश ये करूंगा कि एक पारिवारिक तस्वीर हो जाए। सर, मैं तो ट्रेलर देख रहा था, मैं कैसे घुसूंगा उसके अंदर। बहुत अच्छी एक और बात है कि 10 दिसंबर मेरे छोटे बच्चे का जन्मदिन है, तो मैंने उससे कहा कि देखो, नेटफ्लिक्स ने तुमको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दी है कि तुम्हारे पिता का काम क्या बात 10 दिसंबर को दुनिया के सामने आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।